So, uh, what is the time now in Slovakia? Ravi sir? It it is 6:30. 6:30 a.m. Okay. Yes. So quite early for you in the morning. Yes, I woke up around 4:30. Oh my God. So regularly you woke up around 4:30 or like today it was No, today it's only today only. okay. So we have disturbed your Sunday, that means. Uh, not not an issue because once you are out of India, you just need to manage things. Correct. How's the weather there in Slovakia? It is not much cold now. Okay. Earlier, it was very cold. Okay. So now weather is okay. Now the temperature would be around -1 or 2. -1 or 2. Okay, it's a cool country. Mhm. Hmm. So it's a winter there as well, or like how is the Uh, pattern? it's winter for all the northern hemisphere countries. Like India is also lying in northern hemisphere. Okay. Okay. So all Hmm. the northern hemisphere countries such as Northern America, northern Hmm. like Europe, the entire Europe comes under northern hemisphere. Then China and all Asian countries. Okay. So So they follow the same cycle, is it? yes, and for southern hemisphere countries like Brazil, Australia, and those, Mm-hmm. so they would have summers. I think Hmm. that is. Interesting. Read all these things in school in geography classes, but Hmm, then we hmm, study to pass the exams. Okay. hmm. So yes, there is lot of difference, like clock change. So they follow the clock change as well, and Okay. also the time difference is very high. Like in winters, you can expect the night is around 3:45 something. Oh, 3:45. Okay. Yes, and Mhm. in summers at the peak time of summer, Okay. you can expect sunlight till 10:30. Oh, okay. So you also have that क्या बोलते हैं उसको Mhm. daylight saving hours? Yes. So Okay. currently it is daylight saving is on. So we have 1 hour more behind than Indian time zone. Okay, 1 year. So Okay. yes. Mm-hmm. So in summers the time zone is around 3:30. Three, it means 3.5 hour Mm-hmm. difference with Indian time Mm-hmm. zone. But Mm-hmm. in winters it is 4.5. In UK it is 5.5. Mm-hmm. Nice, interesting. I think meanwhile others are joining. It's good to know about different countries. Uh, Ravi sir, like I think Slovakia is also shares boundary with Ukraine, right, on the east Yes, side. So, correct. Correct. does it has any influence from the war going on in Ukraine? Yes, influence is there, like the prices of all the groceries, Mm. like your food, you need your cooking oil, you need your bread, milk, and all. So Mm-hmm. vegetables and all. So all those prices are a little bit higher. It is not just in Slovakia; it is in entire Europe because Mm-hmm. I have visited many countries in Europe. Europe. Okay. So the prices are gone high. Also, there are many Expensive, refugees. expensive. Yes, Yeah. so there are many refugees from Ukraine. So Mhm. Oh, okay. Refugees. yes, Right. Okay. but nowadays it is now very normalized. Initially, when I came here around uh, 2022. Yes, 2022. mid of Oh, 2022. okay. So Oh. at that point of time, there was there was frequently you can see few Ukrainian peoples, Okay. but now it is very normalized. They are, I think they moved to some.
different countries, and some Mm, of them have went back to Ukraine. mm, So it is there. mm, mm. So no, But no fears like the war is going on in adjacent country, like anything. actually, the war is going on nearby the boundary of Ukraine and Russia. Ah, Russia. So that's on a different side of Ukraine. Okay, Yes, not in the that eastern is side. on very different Mm, side. mm, mm, So mm. on this side, we hardly hear anything. Okay, There okay. is nothing like we are hearing that some bombarding or something. Nothing like that. Acha. It is around 700 or 800 kilometers apart. So 700 to 800 kilometers. Okay, from Indore to Delhi, kind of. yes. And the countries are Okay, very small. Most of the European countries are very small. So correct, correct. Yeah, yeah. European, you like what I have it is heard. a larger part of India. Like you can compare just Mm-hmm, you can compare it like India. mm-hmm, After every 50 or 100 kilometers, the language is getting changed. Every country has their own language, mm-hmm. and they have formed European. You have already heard about European Union. So they Right. are behaving like a country. Like the whole Okay. organization is behaving like a country. They Mm-hmm, have their own parliament, mm-hmm, and they are also electing the European Union members. Like mm-hmm, we elect for Lok Sabha mm-hmm. for our central government. So that type of of Interesting, governing structure interesting. is there. I think we'll discover more about Slovakia from you. So already Mhm. we have 41 participants. So Mhm. and it's already 11:06. So I would like to welcome everyone. Welcome to this webinar come podcast. Really happy to have you all here. It's a Sunday morning, and kudos to your passion for learning. That you are joining a informative webinar on Sunday, and we are really happy to have Ravi Padmane with us. Ravi Padmane is as of now in Slovakia. He is a part of TCS. He comes with an 8+ years of experience in SAP. He's a SAP functional consultant now, and he's an IMS alumni. He was my senior, and he was selected in TCS from TCS MBA hiring. And he was one such person whom I used to take guidance from when I was preparing for TCS as well. That was my dream company also. So, Ravi sir, you remember those days I used to call and bother you, right? Yes, I can remember. At that point of time, I was in Pune, Right. and I was giving my services to TCS, and suddenly I got your call. Correct, correct. I have been very notorious in terms of disturbing people. So Mm, today, want to show gratitude to you, before all the audience. Thank you for guiding me. And I think mm, you are one such person whose inputs have really helped me. I have always mm, believed not everyone can give right guidance, and you should go to the right people. So mm. thank you so much for that. Audience, today my throat is down. I am having cold and cough. So please pardon my voice. I am not best of my voice. वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता हूँ, but ठीक है, I have now got a reason, to defend it. Okay, Mm. so apart from Ravi sir, we also have a special participant today, Sandeep. Right, so let me tell you who is Sandeep. Sandeep is, as of now, in IIM Calcutta. He's pursuing his uh, postgraduate diploma in business analytics. And just want to, Sandeep is a very good friend. We have done engineering together. And then he went on becoming a faculty in LN. And then finally, now he is in IIM Calcutta pursuing his postgraduate degree. And just want to share that he was also like, I have like I have posted on my status that we are having this webinar on SAP, and Sandeep also registered for that. Being a student of IIM Calcutta, he still registered for this webinar. That shows how much importance people gives to learning, and to know about the trending technologies like SAP. So I just want to highlight, put him on spotlight, and give a take an inspiration from him that that we should always be keen on learning.
Okay, maybe not sure. Something technically wrong at his end. If he if it is sorted, then we will hear to him also. Okay, then let's move on to the topic of today. So all the attendees which have joined this call, I'm very sure that you are pursuing most of you are from MBA. Some of you might be pursuing some other degree in engineering, and yeah, all of us. When we go for such a professional course, all of us dream for having a good placement, a high paying career, and we also have aspirations to go abroad, work in MNCs. So all this are something that every students have as an aspiration when they join any professional course. And then what I have seen is the in our curriculum, the subjects that we study, the academic framework that we have, don't have exposure to this. I tell you my own example. I have been into an IT company, and when I was appearing for an interview for my internship, the HR head who was taking my interview asked me what is the latest HRIS ERP tool, and I didn't knew that. And he literally shouted on me that that is a problem with your college. That not only you but the five people who came before you, also don't know what is the latest HRIS ERP tool. And I was embarrassed about it, that I was a good student with good marks and everything, but I was not having understanding of what is trending in the industry today, and that has led to embarrassment, and of course it reduces our chance of selection. And if we talk about today, then most of the see if you see the if you like I coming from an HR background, I hope all like most of the people on this call knows me. So I'm Saksham. Just a brief intro. I was a part of TCS. I was an HR there. I have done roles like recruitment, corporate social responsibility, and then come across have done a very good numbers of hiring for TCS. Have come across different profiles, and I have seen very closely that which people get more, which people get paid less, and that makes me more uh, like it gives me like an inspiration that we should make students aware about which are actually the high paying careers at this stage only when they are pursuing their courses, because if you know about it at this moment only, maybe you can upgrade yourself and make a career in that. So with that thought, in career, we started Career Kunj, where we are working upon, bringing experts to share their insights. Again, coming from my uh, network that I have got in TCS, we are bringing experts. I think every weekend we are doing a career talk. So this is our second career talk. The last one we had, it was in retail banking. You can find that on our YouTube channel. So thank you, Ravi sir, firstly for accepting, our invite to come here, and share your expertise on SAP. And let me tell you, friends, Ravi sir is an alumnus of IMS, as I already mentioned. So we are focusing on bringing the examples which you can relate. Okay, so if you see, the YouTube is full of celebrities, the podcast of celebrities, but my vision is like we don't relate with celebrities because their life is different. Correct. We can only relate with the people who have been to the same situation like us. And Ravi sir studying from Indore, and then now in Europe, with such a good career, I think can be a very good role model for all of us. So this talk, I think, will give you a lot of information about, his journey, and SAP, of course, that is the main topic for today. At the same time, we will not just limit it to SAP, but we will also understand from him that what has been his career approach, no, to be there what where he is today. Let me tell you, friends, it is not the case with everyone that who gets selected in TCS go to Europe and have a high paying career. So getting a placement is not just enough in a good company. You need to have some skills and attitude and approach towards your career that will take you, honestly, to
to a place, which is where you can inspire others. Okay, so it is more deeper. So we will understand from his as well. So I have spoken a lot. Now रवि सर, आई थिंक मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दिया है अच्छे से, बट मुझे हम्म लगता है कि जो एक पर्सन होता है, अब सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन वो ही दे सकता है। और हम हम्म यूजुअली किसी के भी इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, सक्सेसफुल चीज़ें जो आपने करी हैं वो बताते हैं, अचीवमेंट्स बताते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत छोटी-छोटी बातें भी होती हैं लाइक हम्म करियर जर्नी में, जो कि इंस्पिरेशंस हो सकती हैं। तो फर्स्टली तो मैं आपसे आपको आई वांट यू टू शेयर योर इंट्रोडक्शन थ्रू अ हम्म जर्नी कि हम्म हाउ यू स्टार्टेड, व्हाट लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच इन एमबीए, आपने क्या लाइक व्हाट डिड यू वर्कड अपॉन, हाउ वाज योर इंटरव्यू, how was your initial career journey, and then how did you made to where you are today? So it would be completely unplugged, Ravi sir. सब आपके juniors ही हैं यहाँ पे, so you can be informal as well. यस सो हाय एवरीवन। अगर अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं इंदौर से ही था। आईएमएस से ही एलुमनाई हूं, जैसे सक्षम ने शेयर किया है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं पास्ट में जाना चाहूंगा, बिफोर माय ग्रेजुएशन। सो मैंने स्कूलिंग इंदौर से ही किया है, क्योंकि मेरा होम टाउन ही इंदौर है। And not not I was not a part of English medium school. So first I have started my schooling with Hindi medium Oh my God, schooling sir, in this is NP board. something. This is In NP something, board. that all of us should get inspired. Ravi sir is from Hindi medium and he is today in Europe. Can you imagine, guys? Thank you So so much. I didn't knew that, Ravi sir. Please continue. हम्म, मैंने हिंदी मीडियम से मेरा स्कूलिंग किया, वो भी विद हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड। सो अप टू 10th क्लास मेरा हिंदी मीडियम ही था। देन आई हैव चेंज्ड माय medium of schooling into English in 11th standard। वहां पर क्योंकि फिजिक्स उस टाइम पर कैसा होता था कि इंजीनियरिंग जो है, आज भी शायद इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही होती है, और करियर जो परस्यू करना था, ये श्योर था कि साइंस की फील्ड में जाना है, बट ये भी श्योर नहीं था कि इंजीनियरिंग करना है। साइंस की फील्ड में जाना है, बट श्योरिटी नहीं थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। बहुत ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर स्कूल में मैं हो सकता हूँ कि काफी अच्छा स्टूडेंट था, बट एज ए अगर मैं ओवरऑल जर्नी देखूं तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था, एक नॉर्मल स्टूडेंट था। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए या बहुत ज्यादा पढ़ाकू होना ये जरूरी नहीं है। जो मैंने आज तक लर्न किया है, आपको एक अजाइल होना जरूरी है। इट अजाइल इट मीन्स यू शुड बी अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच आर गोइंग अराउंड। सो आपको पढ़ाकू होना ये जरूरी नहीं है। ये जो मैंने अभी तक ये मेरा खूब पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को पास ऑन होते देखा कि जो आके करियर में काफी अच्छा उन्होंने अचीवमेंट ली है। नॉट अ पार्ट ऑफ जस्ट मी, काफी लोग लोगों ने करियर में काफी अच्छा काम किया है, तो वो सब लोग पढ़ाकू नहीं थे। तो ऐसा आपको पढ़ाकू होने की ही जरूरत नहीं है। आप हाँ, एक अच्छी स्टडीज करने की तो जरूरत है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिले। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। लाइक करंट अफेयर्स क्या होते हैं, मार्केट में क्या नई टेक्नोलॉजी सारी है, आप उसमें कैसे अपने आप को परस्यू कर सकते हो, कैसे आप फिट हो सकते हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या नई टेक्नोलॉजी में, तो वो ध्यान देना चाहिए। आफ्टर माय स्कूलिंग आई हैव गिवन, हमारे टाइम पर एमपीपीटी की एग्जाम होती थी, अगर आप लोगों को पता होगा। तो मैंने वो एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया विद मेडिकेप इंस्टीट्यूट से। देन आई हैव served my 4
pharmaceutical company. I have done my engineering, mechanical engineering, that particular part. मैंने सर्व किया for pharmaceutical industry. Uh, my first interaction with SAP was there only, where at that point of time it used to take 3 lakhs of rupees. I am talking about 2014. So that particular software fees at that point of time. So they used to teach in 3 lakhs of rupees, and I didn't know that I will be having career in that field only. So मैंने जब उस particular इंडस्ट्री में काम किया तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था एज ए एंड यूजर. एंड यूजर इट मींस So this work was after your engineering, right, sir? यस Matlab आफ्टर माय इंजीनियरिंग. so you got place in that company, right? करेक्ट. सो Okay. कंपनी का नाम है माइलन लेबोरेटरीज. उसका Mm-hmm. इंदौर में भी प्लांट है. Mm. उनका एक मदर प्लांट था नासिक में. सो Okay. मैं नासिक में मालेगांव एमआईडीसी है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है. एमआईडीसी Mm. वर्ड जैसे हमारे Mm. यहाँ पर एसीजेड जोन यूज होता है Mm-hmm. इंदौर में, या अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखोगे तो एसीजेड जोन ज्यादा पर्टिकुलर फेमस टर्म है. जैसे Okay. आप अगर महाराष्ट्र में आएंगे आपको वहाँ पे एमआईडीसी मिलेगा. तो Oh. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले Mm. मध्य प्रदेश के काफी टाइम पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन Mm. को लेके. तो ये चीज मैंने फील की कि वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्यों है अगर आप गुजरात से कंपेयर करो या दूसरे जो कंपेरेटिवली मोर डेवलप्ड स्टेट्स हैं. Mm. तो वहां पर उन्होंने एक स्पेशल प्रिविलेजेस दिए इंडस्ट्रीज को. तो वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप करना कंपेरेटिवली इजी हुआ. तो Mm. उन्होंने ऐसे एमआईडीसी जोन्स बनाए हैं जो आपको दिखेंगे अलग अलग महाराष्ट्र Mm. के Mm. सिटीज में. Mm. और इट इज सिमिलर टू एसीजेड जोन. और वहां पर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, जहाँ पर मैं Mm-hmm. वहां पर हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आपको यूटिलिटीज, इट मींस योर इलेक्ट्रिसिटी, then water supply. So you need to treat the water because you are manufacturing Mm. high end drugs. So जो वो ड्रग्स होती हैं उनको अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको काफी ज्यादा क्लियर वाटर चाहिए. जैसे हम नॉर्मली जो वाटर यूज करते हैं Mm-hmm. हमारे घरों में, वो पीपीएम में हम मेजर करते हैं. दैट Okay. मीन्स पार्ट्स पर मिलियन. सो Mm. 1 मिलियन जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उसमें कितने Mm. पार्ट इम्प्यूरिटीज हैं. Mm. सिमिलरली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें पार्ट्स पर बिलियन में वाटर की क्वालिटी मेजर करते हैं. इट मींस Okay. जो पानी है काफी ज्यादा प्योर होना चाहिए, और उसी Mm-hmm. से वो क्लीनिंग करते हैं तो सारी मशीनरीज. कितने टाइम आपने वहाँ काम किया, सर? 2 years. 3 years. So you got your first exposure to SAP in that, is it? यस. Okay. वहां पर एसएपी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था. Mm. इम्प्लीमेंटेशन इट मींस कि वो एक पूरा सर्वर Mm. सेटअप करते हैं उस Mm. पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए. Mm. Right, सपोज right. आई थिंक ईआरपी सॉफ्ट टूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है. ऑल द करेक्ट. डिपार्टमेंट हैज टू बी इंटीग्रेटेड टू हैव द इंटीग्रिटी. यस. करेक्ट. करेक्ट. तो आपका कॉस्ट का पार्ट होता है जिसमें आपका आपको अपने सारे आपके जितने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसको अलाइन करना पड़ता है. तो उन्होंने पर्टिकुलरली वो एसएपी पहले से यूज कर रहे थे, बट वहां पर प्लांट मेंटेनेंस जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था. सो एसएपी का आप देखोगे तो जनरली एक जनरल यूजर जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग अमेजन यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, वो हमारे मोबाइल में अवेलेबल है या हम लोग उनकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं. बट हम इनडायरेक्टली एसएपी की काफी सारी स्क्रीन्स को यूज कर रहे हैं. अगर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को आप यूज कर रहे हो, करेक्ट, करेक्ट, उसमें आप करेक्ट. देखोगे कि आप इन हाउ कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एसएपी का SAP. पार्ट वहां पे आप यूज कर रहे Mhm. होंगे So as a टू customer, मैनेज. we are using it. As a user, we are using it already. SAP on the other end.
whereas like the techie people we work on the other end, on the development यस, and yeah, managing end. ठीक है, makes sense. करेक्ट। और तो एसएपी के जो फिर प्राइमरी हाँ, कस्टमर्स हैं वो आपको सारी इंडस्ट्रीज मिलेगी, गवर्नमेंट्स मिलेंगी, ओके, आपको बैंकिंग सिस्टम, काफ़ी सारा आपको हम्म, इंडस्ट्रीज़ वो सारे डिफरेंट हम्म, जो सेक्टर्स हैं, उनमें आपको हम्म, यूज़ मिलेगा। तो हम्म, मेजरली उनका जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं या जो इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से, वही उनके क्लाइंट्स हैं। अच्छा। तो सर ये लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि यू वर्क देयर आफ्टर वर्क फॉर 2 years आफ्टर योर इंजीनियरिंग, देन फिर एमबीए करने का थॉट कैसे आया आपको? एमबीए करने का थॉट ऐसा था कि वहाँ पर जो जॉब मैं देखता था, हम्म, वहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको एक्सपोज़र मिलता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि हम्म, आप किसी और इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। अगर एक बार आप हम्म, उस इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम बिता दो, तो हम्म, आपकी कुछ लायबिलिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, तो आप एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर देते हो। करेक्ट, एंड मुझे ये था कि पहले शुरुआत से ही था कि मुझे पढ़ाई में कुछ और एक्सेल करना है। तो अच्छा, ओके, वो माइंड में हमेशा से था कि ये मुझे कुछ पढ़ाई में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना है, तो मेरा था कि पहले कि मैं एमटेक के लिए ज़्यादा सोच रहा था। बट हम्म, जब मैंने देखा कि एमटेक करने के बाद भी काफ़ी लोगों की जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि हम्म, हम्म, आफ्टर 2013 हम्म, एक रिसेशन पार्ट आ गया था हम्म, मैकेनिकल और जितने भी हम्म, कोर बैकग्राउंड के हम्म, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और मैं 2014 में ही पास आउट हुआ था, तो ओके, जॉब्स नहीं थी। तो राइट, राइट, मैंने ये देयर वाज अ टाइम देयर, राइट, आई आल्सो रिमेंबर उस टाइम पे तो ऑनेस्टली टीसीएस जैसी कंपनियों ने भी ले ऑफ किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, इट वाज इन द न्यूज़, यस, यस, यस। करेक्ट, तो वो ऐसा टाइम था जब लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। अगर आप करेक्ट, सीएस या आईटी बैकग्राउंड से थे, तो आपको जॉब मिल जा रही थी। हाँ, बट अगर आप किसी कोर फील्ड में हैं, तो आपको जॉब नहीं हुँ, मिल रही थी। क्योंकि हुँ, हुँ, मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लूँगा, तो मैं ने मल्टीपल टाइम टॉप किया मेरे जो इंजीनियरिंग की क्लास थी। हुँ, यूनिवर्सिटी टॉप तो नहीं किया, बट हाँ, मैं मेरे कॉलेज में एक अच्छा स्टूडेंट था। नो नाइस, तो अ, और मैंने जब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली थी, और 1 साल मैंने कंप्यूटर साइंस में ही किया। ओह! देन ओके, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, तो मुझे हाँ, एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग में नॉर्मली एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, अगर सीट्स वेकेंट हैं, तो आपको मिलता है। उस टाइम ऐसा था कि जब मैंने 2010 में एडमिशन लिया था, हुँ, तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता था। तो आज तो सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। पूरा उल्टा हाईएस्ट हो कट गया ऑफ है, पूरा एवरीबॉडी इज़ उल्टा हो गया। गोइंग बिहाइंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, लाइक हुँ, दैट्स ट्रू, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बहुत अभी क्या बोलते हैं, हाँ, कम इंटरेस्ट लेते हैं लोग। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा था कि आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है। हाँ, आपको कंपैरेटिवली मोर फिज़िक्स यूज़ होते हुए दिखेगा, और कंप्यूटर साइंस में आपको क्या है कि मोर टुवर्ड्स टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट और हार्डवेयर पार्ट जो तो आई आपका थिंक यही रीज़न है कि जो मैकेनिकल और दूसरे नॉन सीएस आईटी के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आई हैव सीन दिस कि जो कोर सीएस आईटी के जो बच्चे जॉइन करते हैं और मैकेनिकल, और जो दूसरे नॉन सीएस आईटी के बच्चे होते हैं, इट्स एन ऑब्जर्वेशन ओनली कि दे डू बेटर। लाइक आई यस। डोंट नो, मतलब कुछ रिसर्च तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऑब्जर्वेशन है। इफ यू सी हुँ, टीसीएस सीईओ इज आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर आईटी की कंपनी होने के बाद भी। सिमिलरली द केस विद गूगल सीईओ, ही इज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर, नॉट अ कोर सीएस करेक्ट, आईटी स्टूडेंट। करेक्ट, करेक्ट। तो कोर फील्ड में इंजीनियरिंग का ये हेल्प हुआ कि मुझे एक्सपोज़र मिला मल्टीपल इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके कॉलेज के थ्रू भी आपका इंटर्नशिप होता है, फिर आप खुद भी कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। तो आपको मल्टीपल अ अपॉर्च्युनिटी मिलती है, फिज़िक्स की अलग-अलग आप डोमेन से कनेक्ट होते हो, हुँ, हुँ। मोर रिलेट कर पाते हो। हुँ, हुँ, कंप्यूटर हुँ। साइंस में उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं।
तो हुँ, आप जैसे जो डैम्स बनते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो भी आपके हुँ, डैम्स बनते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशंस, आपका थर्मल न्यूक्लियर हुँ। प्लांट्स, तो सर आई थिंक देन इतनी आपकी साउंड अंडरस्टैंडिंग थी लाइक अबाउट इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स और 2 साल आपने काम भी किया इंजीनियरिंग के हुँ, ही रोल में। देन आई एम गोइंग फॉर एमबीए मतलब डिडन्ट यू थॉट कि मेरा इंजीनियरिंग का नॉलेज वेस्ट हो जाएगा? ये थॉट आता है, बट मैं जब मैंने 2 साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में दे दिए थे, हाँ। तो ऐसा लगा कि वो क्योंकि आपको वापस से रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे को हुँ, मुझे हायर स्टडीज़ तो करना था। हायर स्टडीज़ इधर मैं मास्टर्स करता, एमटेक करने जाता या मैं एमबीए की तरफ आऊँ। तो मैंने एक हुँ, चीज़ नोटिस की कि लोग जो है एमटेक करने काफ़ी जा रहे हैं। मैं हुँ, साउंड था बट भूल जाते हैं आप। हुँ, नॉर्मली अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, हुँ, हुँ, आप हुँ, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो, तो एक पॉइंट के बाद आपको वापस से रेडी होना पड़ता है उसके लिए। हुँ। अगर आप कंटिन्यूटी में किसी चीज़ को कर रहे हो, तो करेक्ट है। आपके सक्सेस के रेट ज़्यादा होते हैं। राइट, राइट। दैट इज़ ट्रू स्पेशली विथ टेक्निकल फील्ड्स। यस, और उस टाइम पर कैसा था कि हमारे टाइम पर ही बैंकिंग सेक्टर का भी काफ़ी ज़्यादा बूम आया, तो लोग हुँ, बैंकिंग के एग्ज़ाम देते थे। तो बैंकिंग के लिए नॉर्मली हुँ, हुँ, हुँ। आपको प्रिपेयर करना पड़ता था। सर अ, बैंकिंग वही बैंकिंग तो अभी भी आई थिंक द मोस्ट सॉट जॉब है। हुँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जो बैंक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं आईबीपीएस और हुँ, एसबीआई के सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं उसके। एंड हाँ, एंड एंड यू वोंट बिलीव सर आपको पता ही होगा वैसे आईआईटीज़ और आईआईएम्स के बच्चे भी देते हैं एग्ज़ाम, ठीक हाँ, है? तो काफ़ी लोग देते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी लोग एग्ज़ाम देते देते हैं। हैं, यस। तो या मैंने भी उसका जब मैंने 2 या 3 महीने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मीनव्हाइल मैंने उस टाइम पे डीए, वीवी, सीएटी की एग्ज़ाम होती थी। शायद हुँ। अभी होती है नहीं, मुझे पता नहीं नहीं अब है। शायद सीयूईटी आ गया है सीयूईटी आ गया है। आई आल्सो गिव सीईटी बट अब सीयूईटी हो गया है। दैट्स अ पैन इंडिया एग्ज़ाम। यस, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। मैंने हार्डली उस टाइम पर शायद 15 दिन ही पढ़ा होगा। हाँ। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक 24 आया था उस टाइम। ओह! तो ओके गुड। हाँ, और फिर मुझे लगा कि एक मैंने अगर एग्ज़ाम दी है, रैंक भी अच्छा है, तो एटलीस्ट मेरे को एमबीए की तरफ जाना चाहिए। मैंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर आप देखोगे, ना मैंने केट की एग्ज़ाम दी, ना जीमेट हुँ, दिया, हुँ, कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो मतलब दिमाग में था भी नहीं पहले तो एमबीए करना है। राइट। एक लगता था कि मुझे मास्टर डिग्री करनी है, बट ये सो नहीं था। दैट इज़ स्पॉट ऑन गाइस यू शुड ऑल ऑफ यू शुड हियर दिस। रवि सर का भी कुछ ऐसा सर्टेन थॉट नहीं था एमबीए का, ओके। इट वाज़ नॉट वेल प्लान्ड सो आई थिंक सबकी ही ऐसी हुँ, जर्नी होती है कि कोई बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होता कि भाई उसको हुँ, मतलब कुछ पर्टिकुलर करना है। विद टाइम वी अंडरस्टैंड आवर हुँ। इंटरेस्ट सो दैट इज़ हाउ यू नो द जर्नी बिल्ड्स अप। यस सर प्लीज़ कंटिन्यू। देन मैंने जब एमबीए स्टार्ट किया कि अब फिर बाद में श्योर हो गया था कि अब एमबीए में ही करियर करना है आगे। तो जब एमबीए स्टार्ट किया तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि या तो मैं फाइनेंस के साइड जाऊँ हुँ, या हुँ, मार्केटिंग जाऊँ। हुँ। ह्यूमन रिसोर्स में नहीं जाना चाहता था क्योंकि अ, वो एक मतलब उस टाइम पर लोग उसको मोर मोर पर्टिकुलर टू गर्ल्स। फीमेल गर्ल्स के रिलेटेड उसको जोड़ते थे राइट, और ये मैंने जॉब बहुत लोगों भी के कम साथ होता देखा था। है, जब भी एमबीए स्पेशलाइज़ेशन करने की बारी आती है, तो बहुत लोग को ये तो क्लियर होता है ये नहीं क्लियर होता क्या करना है, बट ये क्लियर होता है एचआर नहीं करना है। सो हाँ, अभी हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी यही हुआ। द अदर जेंटलमैन अंशुल सोलंकी वाज़ आल्सो क्लियर कि एचआर तो नहीं करना है, मार्केटिंग फाइनेंस में से क्या लेना है, ये डिस्कवर करना है। गुड आपका भी यही सेम चीज़ है, नाइस। हाँ। फिर मैंने देखा कि किसमें ज़्यादा जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अवेलेबल। तो मैंने देखा कि मार्केटिंग काफ़ी आईएमएस का आज भी आप देखोगे तो शायद मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है हुँ, सबसे और ज़्यादा वो कंपनीज़ मार्केटिंग के लिए आती है, करेक्ट दैट्स ट्रू। हुँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केटिंग में जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मुझे ये हुँ, लगा। तो हुँ, जॉब भी अच्छी मिल सकती है हुँ, एंड फाइनेंस में इसलिए नहीं जाना था क्योंकि अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं था। मुझे करेक्ट, करेक्ट, या मोर ये सबके दिमाग में आता है, इंजीनियर्स के दिमाग में तो बहुत आता है, अकाउंट्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ कंप्लीटली न्यू फॉर देम। करेक्ट और ऑपरेशंस था नहीं
आईएमएस में, तो मैंने सोचा कि हाँ, क्यों ना। ऑपरेशंस राइट। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ऑपरेशंस एक अच्छा ऑप्शन होता। करेक्ट। हाँ, फिर मैंने सोचा कि बेस्ट तो यही होगा कि मैं मार्केटिंग में हम्म। आगे जाऊं। हम्म। और मार्केटिंग में जब स्टार्ट किया तो आप काफी रिलेट कर पाते हो मार्केटिंग में, राइट। क्योंकि मार्केटिंग हर किसी चीज से जुड़ी हुई है। आप एडवर्टीजमेंट देखते ही हो किसी हम्म। ना किसी वे में, किसी ना किसी फॉर्म में। हम्म। तो काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है मार्केटिंग में, अगर आप करियर आगे करते हो। समझना काफी आसान होता है कंपेरेटिवली। हम्म। तो मैंने सोचा कि काफी अच्छा है। मैंने देखा कि प्लेसमेंट्स भी ठीक ही होते हैं हम्म। आईएमएस में। तो फिर वैसे करियर स्टार्ट हुआ एमबीए में। फिर उसके बाद बट ये था कि आईएमएस में मैंने देखा आईटी की कंपनीज काफी कम आती है। जब टीसीएस हम्म। भी आया था, पर्टिकुलरली जब 2018 में जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया, तब हम्म। टीसीएस ने एज ए पूल कैंपस हायरिंग स्टार्ट किया था हम्म। उस पर्टिकुलर ईयर पे। उसके हम्म। पहले आप देखोगे तो 3-4 साल पहले आप जाओगे, तो हम्म। 2018 के, तो आप हम्म। इन्फोसिस भी आप देखोगे कि हायरिंग करती थी और काफी लोग करते थे। बट हम्म। उनको काफी सारा जो अपॉर्चुनिटीज और जो उनको लोग मिल जाते थे, हम्म। वो डेफिनेट उनको काफी दूसरे एरिया से मिल जाते थे। वो उन्होंने दूसरे हायरिंग के प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए। तो लकीली उस टाइम पर एक कंपनी आती थी, डेलोइट और टीसीएस। राइट। राइट, आई एम। तो हम्म। डेलोइट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट वो आईटी का नहीं था उसमें करियर। और मेरा कम्युनिकेशन काफी वीक था। ओके। मैंने इंजीनियरिंग किया था, मेरा हाँ। कम्युनिकेशन काफी वीक था कंपैरेटिवली, क्योंकि मैकेनिकल में जब मैंने इंडस्ट्री एक्सपोजर लिया तो वहाँ पे आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करना है इंग्लिश में। आपको लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, या आपको हिंदी में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपका जो स्टाफ होता है वो जनरली एज्ड पीपल होते हैं, या उन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया होता है या डिप्लोमा करेक्ट, किया होता है। करेक्ट। तो आप बैकग्राउंड। उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन पार्ट उतना स्ट्रोंग नहीं हो पाता। So guys, points to be noted again, like Ravi sir is saying his communication was not that good. And that shows a big hope for everyone that it is communication is of course important, but not everything. If you have a good sound technical knowledge, you can still make it to good companies. Something to, understand deeply. यस। और ये मैंने आइडेंटिफाई किया जब मैंने सेकेंड सेमेस्टर में अपीयर किया। फर्स्ट सेमेस्टर आपका 4 सेमेस्टर होते हैं एमबीए में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका तो इंटरेक्शन पार्ट में ही जाता है कि सबके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। आ पार्ट ऑफ स्टडीज, आप ज्यादा फ्री होते हो। आप जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हो उस टाइम, आपको सिर्फ एमबीए कंप्लीट करना है। तो आप आज स्टार्ट में हो, आप कुछ नहीं सोचते। जैसे सेकेंड सेमेस्टर आता है तो आप देखोगे काफी सारे लोग प्री प्लेसमेंट ऑफर्स के लिए आते हैं, काफी सारे लोग दूसरी एक्टिविटीज के लिए करते हैं, काफी मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर रहे हैं लोग। तो मैंने वो पैटर्न नोटिस किया। अब मेरे ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरा वीक पॉइंट है कम्युनिकेशन पार्ट। तो मैंने उस पे स्टार्ट किया कि मुझे थोड़ा और कम्युनिकेट करना चाहिए। Hmm. कुछ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी चाहिए। और लकीली उस टाइम पे जियो आ गया था। Okay. तो आपको डेटा काफ़ी मिल जाता था। आपका हाँ, उसके पहले क्या था कि डेटा काफ़ी ज़्यादा महंगा था। महँगा होता था। तो आप राइट। उतना ज़्यादा जो आपका जो टाइम स्पेंड होता है, उतना ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं होता था। और नहीं, सब करेक्ट है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हम इंजीनियर्स थे, हम लोग वाईफाई के पासवर्ड्स क्रैक करने की कोशिश करते रहते थे कहीं से। कहीं से तो कुछ क्रैक करे, कहीं डेटा से मिले। तो डेटा मिले। राइट। फिर जो एक इंजीनियरिंग की उसमें ये हो गया था कि मेरा कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली बेटर हो गया था। सर, ये थोड़ा-सा आप थोड़ा बट डीप में कवर करिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मेनी स्टूडेंट्स कि कम्युनिकेशन पे कैसे काम किया जाए। सो व्हाट इज़ योर कम्युनिकेशन, एक तो 2 पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। एक होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स और दूसरा हुँ, पार्ट है आपका लैंग्वेज पे कमांड। हुँ, तो लैंग्वेज पे कमांड आपकी अगर
आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तक आपकी एक बेसिक कमांड आ जाती है। बेसिक आप हुँ, फ्रेजेस हुँ, बना पा रहे हो, आप बेसिक आप सेंटेंसेस बना पा रहे हो। हुँ, हुँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो मैंने देखा है कि आज भी लोग आईटी में इतने साल से हैं, फिर भी वो स्पेलिंग हुँ, मिस्टेक्स करते हैं। हुँ, 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 और इश्यू वो चीज़ अब सारी आप देखोगे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के आप यूज़ करते हो, इवन आप वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऑटो स्पेल करेक्ट का ऑप्शन आता है, तो हुँ, उस पार्ट में तो आपको इतना नहीं आना है, बट आपको कम्युनिकेशन पार्ट पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको हुँ, उसके उसके ऊपर आपकी कमांड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुँ, होगी। हुँ, तो आपको माहौल डेवलप करना पड़ेगा। हुँ, जनरली हम लोग इंटरैक्ट करते हैं तो हिंदी में इंटरैक्ट कर रहे हैं हुँ, मोस्टली। हुँ, हुँ, अगर हम पार्टली इंग्लिश में इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दें किसी के साथ, तो हो सकता है कि हमारा इंग्लिश बेटर हुँ, हो। अगर हम राइट। सुनेंगे हुँ, तो वेब हुँ, सीरीज़ हो सकती है, कुछ न न्यूज़ हो सकती है, न्यूज़पेपर हुँ, आप पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी ना कभी स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने पहली मेरी इंग्लिश मूवी देखी थी जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद उसके बाद मैंने जब एमबीए में कुछ वेब सीरीज़ डाउनलोड करके देखना स्टार्ट किया, तो मुझे एटलीस्ट लिसनिंग एबिलिटी मेरी स्ट्रॉन्ग हुई। हुँ, तो हुँ, दैट्स द आप ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से ये काफ़ी नोन थिंग्स हैं जो आपको और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको जब आप कम्युनिकेट करते हो एक एक लिसनिंग वाला पार्ट तो आपका ठीक हो जाता है। जब आप उसको हियर करते हो आप अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में आप यूके की वेब सीरीज़ देखोगे तो आप देखोगे कि इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट साउंड कर रही है। आप कोई यूएस बेस्ड वेब सीरीज़ या कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें आपको एक इंग्लिश का डिफरेंट वर्ज़न दिखेगा। वो उनका एक डिफरेंट डायलेक्ट होता है। तो वो एक आपको धीरे-धीरे समझता है, टाइम लगता है उसमें हुँ, बट हुँ, हुँ। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, वो आपका बेटर नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन So basically, ऐसे ही होगा। you worked at yourself only, जैसे कि वीडियोस देखना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बात करने की। आपने कोई स्पेशलिस्ट के लिए कोचिंग वगैरह नहीं लगाया था, दैट्स राइट, करेक्ट रवि सर? करेक्ट। मैंने कोई स्पेशल कोचिंग तो नहीं लगाया हाँ। बट ये ऐसे ही स्टार्ट किया कि मैं हुँ, अगर पहले वहाँ पे उस टाइम पर मैं दैनिक भास्कर पढ़ता था, जो हिंदी हुँ, में आता है। करेक्ट। तो मैंने धीरे स्मॉल शिफ्ट किया कि क्योंकि पॉकेट मनी भी बचाना है, हुँ, तो हुँ, फिर फ्री प्रेस करके आज भी एक हुँ, न्यूज़पेपर आता है, हाँ। जो इंग्लिश में ही होता है। उसका कंटेंट ठीक होता है। हुँ, आपको मतलब फ्री में वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उस टाइम पे इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज़ एप्लीकेशन उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो 3 महीने का फ्री ट्रायल देते थे। तो ओह! ऐसे करके मैं मैंने हुँ, वो पढ़ना स्टार्ट किया। हुँ, तो हुँ, कुछ और उसमें आपको आपको जब इनिशियली स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा भारी इंग्लिश के वर्ड हैं। तो हुँ, आपको एक मतलब बार-बार डिक्शनरी रेफर करना पड़ता है। बार-बार डिक्शनरी रेफर करना गूगल, पड़ता है, राइट। गूगल। तो बट ये इनिशियल डेज़ में होगा। ये इनिशियली जब आपका 1 मंथ हो रहा है ना, जब आप पहला मंथ है, आप स्टार्ट कर रहे हो आपका जर्नी उसमें, हाँ, टाइम भी लगेगा आपको। जो न आपका हिंदी का न्यूज़पेपर आप आधे घंटे में पढ़ के खत्म करते हो, वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको हो सकता है 4 घंटे भी जाए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट करो। आपके जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूज़पेपर में उसको पढ़ो या हुँ, जो आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है, ऐसा कभी नहीं है। एटलीस्ट 1 पेज या 1 या 2 पेज तो आप एटलीस्ट पढ़ो, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो डेली लाइफ में बिज़नेस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। करेक्ट। तो योर बिज़नेस वोकैब्युलरी इंक्रीज़ेज़ एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग ऑल ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड। जब भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की बारी आती है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ तक आपके साथ वो स्ट्रगल चलेगा। बट आफ्टर दैट आई थिंक यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ इट एंड यू विल आल्सो फाइंड अ एडिशन इन योर वोकैब्युलरी ऑफ बिज़नेस टर्म्स। करेक्ट। तो आपको फाइनेंशियल टर्म्स आपको काफ़ी सारी यूज़ टू हो जाएँगी। जैसे फाइनेंशियल बजट है, अभी आप देखोगे तो सारे न्यूज़पेपर में बजट के बारे में काफ़ी आ रहा हाँ, है। इट्स फुल ऑफ भाई बजट राइट। फुल ऑफ बजट आपको करेक्ट। तो काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी आपकी वहाँ क्लियर हो जाएगी।
तो फिर सर आप आपको स्लोवाकिया में भी इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? हाँ, दैनिक भास्कर भी पढ़ता हूँ और कोई दूसरा न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग। लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको लोकल न्यूज़ चाहिए कुछ। करेक्ट इस इंदौर के पर्सपेक्टिव में अगर मुझे कुछ देखना है, तो मेरे को वहाँ से कंटेंट मिल सकता है। करेक्ट। और अभी कैसा है ना, काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो हार्डली 10-15 मिनट्स लगते हैं। हुँ। मतलब जो आपकी हाँ, इम्पोर्टेंट आपको जो न्यूज़ चाहिए, राइट, क्योंकि आप राइट उसका सर कंटेंट इट इज़ ट्रू विथ मी आल्सो आई आल्सो रीड द न्यूज़पेपर इन 7 टू 10 मिनट्स और हुँ, लाइक इट्स समथिंग आई एन्जॉय मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, इंडिया टुडे ले सकते हो बिगिनिंग के लिए। बिगिनिंग में जैसे मैंने फ्री प्रेस आज भी आता है, अवेलेबल हाँ, है, फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसका दाम शायद आज भी ₹1 है, तो आप आज भी उसको ₹1 में 1 या ₹2 में खरीद सकते हो। सर आज देयर आर सो तो मेनी फ्री रिसोर्सेज टुडे मतलब आज तो हुँ, सो मेनी थिंग्स अवेलेबल एंड हुँ, ई-पेपर इज़ आल्सो वेरी चीपर। हुँ, हुँ, सर एक बात बताइए लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग सो यहाँ पे हमारा जो मीडिया है वो काफी ज्यादा चीजों को एग्जैगरेट करता है तो ऐसा हुँ। यूरोप के मीडिया के साथ भी है क्या वो भी बड़ा मसाला लगा के न्यूज करते हैं क्या पब्लिश ट्रू बट उतना ओके नहीं जितना इंडिया में होता है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स इंडिया इज ऑलवेज ऑन द टॉप करेक्ट। ओके दैट दैट्स मैंने ग्रेट अभी तक यहाँ का एक ही न्यूज़ चैनल देखा है जो इंग्लिश में बताता है। अच्छा बाकी अधिकतर अगर हर कंट्री में आप जाओगे, क्योंकि मैंने अपॉर्च्युनिटी मिली मुझे यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जाने के लिए। हाँ मैंने वहाँ देखा अधिकतर जो लोग यूज़ करते हैं ना, उनकी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़ चैनल को कर सकते हैं प्रेफ़र करते हैं। उनके हम्म, लोकल न्यूज़ पेपर्स होते हैं। जैसे आप हम्म, इटली में देखोगे तो इटली में इटालियन न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर न्यूज़ होगा चैनल को करेक्ट प्रेफ़र करते हैं। राइट और वो उनको इंग्लिश आती है। आप इटली में जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द हाँ पीपल दे कैन स्पीक इंग्लिश, बट वो प्रेफर बोलते हाँ नहीं है, राइट प्रेफ़र नहीं करते, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज को प्रेफ़र करते हैं। तो ये एक करियर शॉक था जो मैंने देखा। पहले मुझे लगा कि लोगों को आती नहीं है, फिर बाद में देखा कि लोग बोलना नहीं चाहते। राइट राइट तो बट हाँ, अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस में जाओगे, तो आपको लोग मिलेंगे कि हाँ, कि लोग अ, इंग्लिश प्रेफ़र कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि अभी आजकल ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है। बट येस, सिर्फ़ इंग्लिश आ जाएगी तो आप बाहर सर्वाइव कर पाओगे, ये भी नहीं है। अच्छा जैसे जैसे आप पर्टिकुलरली मैं स्लोवाकिया की बात करूँ, तो अगर जो आप जैसे यहाँ का जो कैपिटल है ब्राटिस्लावा, हाँ तो वहाँ पर पर्टिकुलरली लोग कुछ हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, जहाँ जैसे मैं नित्रा में रहता हूँ। नित्रा हाँ ये अ, ऑस्ट्रिया में जो वियना है कैपिटल, हाँ वहाँ से हाँ 150 किलोमीटर्स ही है। ओके ओके तो हाँ, आप को यहाँ पर काफ़ी लोग नहीं मिलेंगे इंग्लिश बोलते हुए। अच्छा तो देन ये भी हाउ डू यू कम्युनिकेट देन यू नो द लोकल लैंग्वेज अ, फ्यूज़ वर्ड्स में मैंने यहाँ अच्छा पर वो आपको आने भी चाहिए। जैसे आपको नंबर्स में एटलीस्ट 10 तक की जो नंबर्स होते हैं, वो आप एटलीस्ट कुछ याद कर लो। करेक्ट या ओके और जैसे अभी मेरे को 2 एंड हाफ ईयर ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे को अब राइट तो थोड़ा बहुत इनिशियल कम्युनिकेट करने इनिशियली के लिए स्ट्रगल आपका रहा होगा इनिशियल स्ट्रगल होता है। जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग के लिए बोलते हैं डोब्रे रानो, तो ओके गुड मॉर्निंग होता है। फिर अच्छा जैसे आप फिर अगर किसी को गुड बाय बोलना है, तो दोविदिनिया बोलते हैं, आपका दिन शुभ रहे करके। तो जैसे दोविदिनिया, फिर अगर हाय करना है तो अहोय, ओके के लिए डोबरी। तो ये सब कुछ-कुछ ओके वर्ड्स मुझे इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो इतना ही चाहिए। उसके अलावा आपको गूगल ट्रांसलेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो आपको ओह हेल्प ओके करता है। यस यस गूगल इंटरेस्टिंग मैप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गूगल ओह मैप्स यहाँ पर आप देखोगे वेदर फ़ोरकास्ट काफ़ी अच्छा होता है, बट फॉर 1 वीक। ओके अगर वेदर फ़ोरकास्ट में आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे वेदर देख के ही बाहर निकलना है घर की, क्योंकि आपको कितनी लेयर्स पहननी है कपड़ों की, वो पता कपड़ों की चलता है। वाओ इंटरेस्टिंग तो आपको वेदर देख के बाहर निकलना होता है। अगर टेम्परेचर -5 या -6 है, तो आपको उस हिसाब से एक बड़ा वाला -5 जो -6 सर तो पानी तो जमा ही रहता होगा राइट हाँ, पानी जम जाता है, नदी नहीं जमती।
रिवर को अच्छा। जमने के लिए -15 या -20 होना चाहिए। अगर वो फ्लोइंग रिवर ज़्यादा फ्लो हाँ, हो ऑफ उसका। कोर्स उसमें थोड़ा काइनेटिक एनर्जी रहती है तो इट टेक्स टाइम या। और लकीली मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा था लास्ट ईयर -12 या -15, वो भी एक ही दिन के लिए गया था। तो नॉर्मल टेम्परेचर -5, -6 ये नॉर्मल टेम्परेचर है इधर। Interesting. So sir, okay, after that we were discussing about आपने कैसे एमबीए की तैयारी करी, कम्युनिकेशन प्लेसमेंट की तैयारी करी, कम्युनिकेशन वाज योर हुँ, यू नो वन चैलेंज जो आपने इस चीज को ऐसे एड्रेस किया। उसके साथ हुँ। आपने क्या किया? टेक्निकल कोर्सेज कुछ करे आपने या कुछ सर्टिफिकेशंस करे? एससीपी के रिगार्डिंग तो मैंने कुछ नहीं किया था, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया था। हाँ। क्योंकि टीसीएस ने हमारे टाइम पर कैसे होता था कि पूल कैंपस था, टीसीएस ने उनके इंदौर का जो ऑफिस है, वहाँ पर हम्म। बुलाया। हम्म। वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम हुआ। रिटन हम्म। एग्ज़ाम आप देते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन्स होते हैं। उन्होंने मुझे एक काफ़ी यूनिक लगा कि उन लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन्स लिए भी रखे थे जिनके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं हाँ। और सब ओके। लोग डर रहे थे उन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करने के लिए। बट मुझे लगा कि इतने हार्ड नहीं थे। तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन्स को मैंने अटेम्प्ट किया और मुझे लगा है कि मैं मुझे एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट तो नहीं बताते वो, बस आपको बताते हैं ना कि हायर्ड हो या नहीं हो, हाँ। या मतलब हाँ। आपका ये राउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ। शॉर्ट लिस्टेड, यस। शॉर्ट लिस्टेड की जो लिस्ट आती है। तो वो तो नहीं पता, बट मैंने कुछ क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे और मुझे लगता है कि वो ठीक भी गए होंगे। हम्म। उसमें ईमेल राइटिंग का एक अ, होता है, वो काफ़ी सारे मैंने उसके पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसमें ईमेल राइटिंग पे मैंने थोड़ा-सा वर्क किया था। तो हम्म। ये ऐसा था कि मेरे साथ पर्टिकुलरली ऐसा था कि मेरे साथ कुछ होता था तो मैं उसको पढ़ता था कि यार हाँ। इस इंटरव्यू में ऐसा गया था, ये इसमें क्लियर नहीं हुआ। इसमें काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ ऐसे दिए थे जिनमें मेरा क्लियर नहीं हुआ। जैसे डेलोइट का दिया था, उसमें क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन वीक था। और दूसरा पार्ट ये था कि उनका जो ऐसे कुछ क्वेश्चन्स पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे। हम्म। तो वो सारी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ती है। अगर आप फेलियर्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं आते। मैंने मेरे अब तक के मेरे करियर में कम से कम 100 के आस-पास इंटरव्यूज़ दिए होंगे। उसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारे ही क्लियर किए और मोस्टली हम्म। वो इंटरव्यूज़ हैं जब मैंने एमबीए के समय दिए थे। दिस अराउंड इज वेरी 40-50। इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक अ नोट कि देखिए इंटरव्यूज जरूरी नहीं आपके सारे निकले। ऑल ऑफ अस हैव अवर ओन हुँ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लेकिन हर एक रिजेक्शन से सीखना, जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनीज एक के बाद एक आती हैं और जो बच्चा एक में प्लेस नहीं हो रहा है वो किसी में प्लेस नहीं हो रहा है उसके बाद वाली कंपनीज में। तो आई थिंक द ओनली रीजन कि आप आपके जो वीक एरिया है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। And like हुँ, Ravi sir said, ki from every rejection he has learned and he has worked on that skill. So I think this is यस। a very important attitude to have, that we should learn from rejections. Doesn't matter how small it is. मैंने देखा है बच्चे यूजली ना कंपनीज को ब्लेम करते हैं और कुछ भी मतलब रीजंस निकालते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि आई वाज लैकिंग समवेयर। कुछ तो बोलते हैं कि पैनल्स ही मुझे अच्छे नहीं मिले, या वो उनको फीमेल कैंडिडेट प्रेफर्ड था या मेल कैंडिडेट प्रेफर्ड था, और दे हैव सम अदर बायसनेस। ऐसा कुछ नहीं होता है। वी गेट रिजेक्टेड बिकॉज़ वी वर नॉट डिजर्विंग। अगर हुँ, हम ऐसा सोचेंगे देन आई थिंक वी कैन प्रोबेबली वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड क्लियर द नेक्स्ट प्लेसमेंट व्हिच इज कमिंग अप। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम रिजेक्शंस। यस रवि सर। करेक्ट। देखो, हर ऑर्गनाइज़ेशन ऐसा है कि उनका भी उनके लिए बेस्ट फिट चूज़ करती है। तो करेक्ट, उनको भी राइट। उनके पास एक लिमिटेड वैकेंसीज़ होती है। अभी उसमें उनको आइडेंटिफ़ाई होता है कि यार अगर 10 के 10 लोग अच्छे हैं, 10 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनके पास 2 ही वैकेंसी है, तो कोशिश करेंगे कि उनमें से बेस्ट फिट क्या होता है उनकी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, तो हुँ। ये है। बट आपको लर्न करना छोड़ना नहीं है। अगर आप लर्न नहीं करोगे, नई चीज़ें नहीं सीखोगे, आप पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मेबी आपका टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, तो आपने आइडेंटिफ़ाई किया कि 10 क्वेश्चन्स आपको पूछे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 के आप जवाब दो। बट हाँ, उसमें से हो सकता है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन्स के आंसर आने चाहिए, ये पर्टिकुलर सिनेरियो होता है। बट येस,
आप उसको मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जो आपको नहीं आता था, एटलीस्ट आप सर्च करो। उसको बाहर आके अगर आप कहीं पर पेन पेपर पे, क्योंकि उस टाइम पे आपको ताज़ा-ताज़ा याद होता है, बाद में करेक्ट, आपको याद नहीं रहता। और करेक्ट, मोस्टली दैट्स ट्रू। क्वेश्चन सेम होते हैं, हर इंटरव्यू में हाँ, मोस्टली आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राइट। आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, तो उस पार्ट पे आपको काम करना चाहिए। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने मिरर के सामने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया था कि फिर मैं देखता था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं ज़्यादा अटक रहा हूँ क्या? या मैं कोई स्लैंग यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं उस टाइम पे ये वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। हुँ, 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 तो मैं अटक जाता था, फिर मैं सोचने लगता था, फिर मैं इधर-उधर देखने लगता था। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क स्टार्ट किया और काफ़ी सारे हुँ, वीडियो ये आजकल तो यूट्यूब कंटेंट हुँ, आपको बहुत अवेलेबल है। बहुत तो आप है। देखोगे तो आपको कैसे एक्सप्रेशंस रखने चाहिए, कैसे आप ज़्यादा अपीलिंग लगोगे, आपको जो कितना हाथ घुमाना चाहिए, कितना हाथ नहीं घुमाना चाहिए। हर बार आपको हाथ हुँ, कम्युनिकेट नहीं करना। हर हुँ, बार आपको आँखों से ही कम्युनिकेट नहीं करना है। हर बार कैसे आपको बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर हुँ, आपको कोई गाइडेंस किसी कोचिंग के थ्रू मिल सकती है, तो वो भी आप ले सकते हो क्योंकि वो जल्दी से आपको सिखा देंगे। जैसे हुँ, हम लोग जैसे क्या करते थे, एक ग्रुप हमने फ़ॉर्म किया, उसमें हम जीडी खुद ही कर लेते थे। जीडी में हम लोग देखते थे कि काफ़ी लोग डोमिनेट होते हैं। तो ग्रुप हुँ, डिस्कशन का आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक जीडी का ग्रुप फ़ॉर्म कर सकते हो। उसमें आप कोई एक टॉपिक ले सकते हो। लेकिन अनबायस्ड हो तो बेटर है कि आप कोई प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हो। आजकल काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हो। हुँ, तो वन बाय वन हर स्टेप पे जाना चाहिए। अगर आप रिटर्न में अच्छे नहीं हो, तो आपको रिटर्न का पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली आप रिटर्न के बाद रिजेक्ट हो जाओगे ना। तो आपको रिटर्न पे वर्क करना पड़ेगा, आपको आपका एप्टीट्यूड बेटर करना पड़ेगा, जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी है, वो आपको बेटर करना है। तो आई उसके थिंक हाँ, बाद आप दिस इज़ कि स्टिल अ ईज़ियर पार्ट क्योंकि बच्चे ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव दे के आते हैं और इतनी बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिर भी मैं समझता हूँ कि बच्चे ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट होता है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और सर हुँ, हुँ, दूसरी चीज़ है कि एक बार सॉफ्ट स्किल्स भी चलिए आपने कर लिया, लेकिन जो इंटरव्यूज़ मैंने भी लिए हैं हुँ, और आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि जो बच्चों में एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी हुँ। प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूँढ पाएँ या सोच पाएँ या या कोई मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को अपना यूज़ करके कुछ आंसर दे पाएँ, वो भी बहुत मिसिंग होता है सर आजकल बच्चों में। करेक्ट। उसका मेन रीज़न जो मुझे लगता है, मैंने भी आइडेंटिफ़ाई किया कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हुँ, अगर हुँ, आप किसी चीज़ की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, हुँ, जैसे अगर आज हम किसी से 10 का टेबल पूछते हैं या 5 का टेबल पूछते हैं या 15 का टेबल पूछते हैं या कोई भी या 2 का ही टेबल पूछते हैं, तो हमने उसको बचपन से अभी तक काफ़ी टाइम रिपीट किया है। हुँ, जैसे हम 2+2 एक बार में नहीं सीखे थे। 2+2 हमने एक बार याद किया, फिर उसको हुँ, बाकी मल्टीपल टाइम परफ़ॉर्म किया। हुँ, उसके बाद हमको वो हमारे माइंड में करेक्ट। आज ऐसा फ़िट हो गया है कि 2+2 बोलते से ही 4 बोल देते हैं। एप्लीकेशंस मेक यू लर्न फास्टर, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसमें एक्सपर्टीज़ मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ डेवलप होंगी। हुँ, आपका माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा। एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई, ये भी वैसे ही डेवलप होती है। कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, उनमें नेचुरली ये एबिलिटीज़ आ जाती हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें डेवलप करना पड़ती है। तो अगर आपको वो चीज़ें डेवलप करना है, आपको लगता है कि हाँ, पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से का होना चाहिए कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, आपको ये एक्सेप्ट हुँ, करना पड़ेगा। अगर हुँ, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप लर्निंग की आप में हुँ, जो ईगरसिटी आना चाहिए, जो आपको ईगरनेस होना चाहिए कि हुँ, हाँ, मुझे लर्न करना है, मुझ में ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का पार्ट का प्रॉब्लम है, हुँ, या मेरा हुँ, एनालिटिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ने अच्छी नहीं है। आप हुँ, फीडबैक लो, लोगों से हुँ। आप फीडबैक ले सकते हो। हाँ, बट आपको फीडबैक एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसके लिए इस तरीके से लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फीडबैक ले रहे हो
और वो फीडबैक डिमोटिवेट कर रहा है आपको। डिमो बायस्ड है, डिमोटिवेट हाँ, कर रहा नहीं, है आप। राइट राइट पर्सन से फीडबैक लेना चाहिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द अदर पर्सन शुड बी इन अ पोजीशन टू गिव यू फीडबैक एज़ वेल। So sir, moving on, like, okay, you got placed in TCS, SAP में how did you landed in SAP, मतलब ये कैसे हुआ? जब मैंने कुछ-कुछ एक आध TCS इंटरव्यू पे का भी हाइलाइट करना चाहूँगा मैं आपसे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा वो भी बताइए आप? जब मैंने टीसीएस का इंटरव्यू दिया था पर्टिकुलरली, तब हुँ, तक मैंने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर लिया था कि जो आप शो कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, वो पर्टिकुलर चीज़ उसको डेवलप करती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्या राइट, क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। करेक्ट। अपार्ट ऑफ मतलब जो आप जो जिस बात को आप हाइलाइट करोगे उसी से अगला क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो आपका जो रिज़्यूमे है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। करेक्ट, आपका रिज़्यूमे क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ें आपको आती है या जो चीज़ें राइट, आपने की हुई है, वही आना करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। अभी जब मैंने 2018 में अपीयर किया, तो हुँ, मैंने सी प्लस प्लस किया था 11 के अराउंड। राइट। तो 2011 में जब मैंने सी प्लस प्लस किया था, मुझे उस समय आता नहीं था क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन ही नहीं था हुँ, हुँ, उस हुँ, चीज़ पे, तो मैंने उसको हटा दिया। हुँ। तो अगर मेरे पास सर्टिफ़िकेट भी था, मैंने उसको पास भी किया है, तो एब्सोल्युटली भी स्पॉट ऑन। ज़रूरी नहीं है कि राइट। मुझे उसको दिखाना ही है। राइट, अगर आप दिस इज़ वेरी ट्रू सर, मतलब ये तो होता है कि आ बैल मुझे बार वाली बात होती है कि हमें कुछ आता नहीं और हम उसे हाइलाइट कर रहे हैं, तो मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि आप इससे हमसे पूछिए, एंड देन हाँ, सो इट इट लीड अस टू अ बिग प्रॉब्लम। करेक्ट। तो आप जो सामने प्रेज़ेंट करोगे, उसी पे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हुँ, बनते हैं। दूसरा, जो भी प्रोफ़ाइल ऑफ़र कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए आप अपीयर कर रहे हो, एटलीस्ट आप उस कंपनी को सर्च करो इंटरनेट पर कि वो किस टाइप की हायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ पूछी जाती है। तो एटलीस्ट अगर आप बेसिक नो हाउ डेवलप करके जाओगे ना, तो आपका माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा। हुँ, जब करेक्ट। मैंने टीसीएस के लिए अपील किया था, तो उन्होंने मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए सिंगल चैनल से वो हायरिंग कर रहे थे। हुँ, इट मीन्स वो हायर कर रहे थे बिज़नेस एनालिस्ट, हुँ, कंसल्टेंट, उन्होंने राइट, मेंशन नहीं किया था एसएपी का कुछ भी। हुँ। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर 1-2 और रोल थे जो मैं अभी मुझे याद नहीं प्री-सेल्स रख रहे हैं मुझे। प्री-सेल्स होगा, प्री-सेल्स प्री-सेल्स, must be the one and business analyst, yeah. तो ये मल्टीपल हायरिंग थी और उस टाइम पर मैंने वहाँ पर 2 ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा। उस टाइम पर प्रेस्टीज और आईएमएस के ही स्टूडेंट, जिस सेशन में मैं था, वही 2 से कॉलेजेस के स्टूडेंट थे और आईएमएस से ही उन्होंने हायरिंग, हम 2 लोग हायर हुए थे। उसमें भी जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, वो तकरीबन मेरा 1 एंड हाफ ऑवर चला था। ओह माय गॉड! 90 मिनट्स का, हाँ, और वो काफ़ी लंबा गया। काफ़ी लंबा गया तो एक्चुअली। हाँ, और मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे रिज़्यूमे बेस्ड थे। हुँ, उन्होंने जो इंटर्नशिप की, तो उन्होंने उस इंटर्नशिप पे मुझे क्वेश्चन्स पूछे कि कि मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो बिग बाज़ार में की थी उस टाइम पर। हुँ, तो उस टाइम पर बिग बाज़ार, शायद अभी तो लोगों को पता नहीं होगा, बट एक काफ़ी, जैसे डीमार्ट है आज के टाइम पर, वैसा ही बिग हुँ, बाज़ार एक काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर होता था। उसमें एक ही रूफ के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वेजिटेबल्स, क्लोथिंग्स, जो फैशन रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपको एक वॉशिंग मशीन बेचना है तो आप कैसे करोगे? पेन बेचना है कैसे करोगे? तो guys, वर्चुअली please, hear this very carefully. These are pure, practical based questions which is asked in the interview. Trust me, nobody will ask you what are like marketing subject questions. It is not a viva. So this kinds of questions are asked in the interview. Okay, and then as Ravi sir mentioned, the majority questions come from the CV. So you should only highlight those things which you have done and which you have a strong command on. Yes, sir. Please, करेक्ट। please continue. और
जैसे हॉबी सबकी नहीं होती है, तो मैं भी एक उसमें से एक आदमी था जिसकी कोई हॉबी नहीं थी। तो लेकिन अभी मैंने उस टाइम तक ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया था कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिकल से था, तो हुँ, मुझे कुछ चीज़ें खोलना पसंद था, तो मैं कुछ भी घर की चीज़ खराब हो हुँ, रही है, तो मैं खोल के हुँ, एटलीस्ट उसको चेक करता था। अगर वो हुँ, रिपेयर हो सकती है, नॉर्मल वायरिंग का इश्यू है, तो टेप मार दिया, हुँ, खोल के जो है जॉइंट लगा दिया। तो ये इंटरेस्टिंग। आप पक्के इंजीनियर थे और यू हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो मैं घर की वॉशिंग मशीन खोल देता था, ड्रेन जाम हो गया तो वॉशिंग मशीन खोल दी। क्या फिर बात है! मैंने तो वाओ! काफ़ी सारे ऐसे फ़ैन खुद ही फिट कर दिया। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें मैं करता था, बचपन से मतलब आदत थी वो ऐसा हाँ, करना। तो मैंने बोला कि ये एक हॉबी हो सकती है। फिर आप कुछ चीज़ काफ़ी लोग क्या होते हैं जैसे घर से बाहर रहते हैं, तो आप कुकिंग स्टार्ट कर देते हो थोड़ी बहुत। तो हो सकता है हुँ, किसी की कुकिंग एक हॉबी हो सकती है। हुँ। So there was question on your hobbies in your interview, is it? यस, ये मैंने आइडेंटिफ़ाई किया 3 मैंने जितने इंटरव्यू दिए थे उसमें 3 या 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, हॉबीज़ हुँ, पे। तो हॉबीज पे। फिर शुरुआत के 1-2 इंटरव्यू में उतना मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, फिर बाद में मैं प्रिपेयर हो गया हुँ, कि हुँ, वो मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे इंटरैक्ट करना चाहता है, ये मैंने करेक्ट। आइडेंटिफ़ाई किया। अगर वो हुँ, आपसे इंटरैक्ट करना चाहता है, वो आपको ओपन करना चाहता है, तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहता है, हुँ, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल जज कर सके। हुँ, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी वो जज कर सके, कि हुँ, क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से सुन रहे हो, हुँ, आप हुँ, कितने अच्छे से उस पे आंसर कर पा रहे हो। अ, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप ही के बारे में पूछ रहा है वो, कि आप अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप बोल सकते हो बुक्स पढ़ना पसंद है। बट हाँ, आपको फिर कुछ हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हॉबी मत आप बताओ। जैसे आप क्रिकेट बता दोगे, तो क्रिकेट में हो सकता है वो ऐसे पुराने-पुराने क्वेश्चन पूछ ले कि जेनरिक हॉबीज़ को आप अवॉइड करो। काफ़ी सारे राइट, लोग लिखते थे कि लिसन टू म्यूज़िक। लिसन टू रिसेंट म्यूज़िक में ये क्या होता है? वो हुँ, काफ़ी पहले तो नॉर्मली यही बोलते थे कि ये क्या होता है? म्यूज़िक लिखना या लिसन करना तो सबको पसंद है। आपको पर्टिकुलरली क्या चीज़ का है? तो आप स्पेसिफिक हॉबी बताओगे तो क्वेश्चन हुँ, होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हुँ, हुँ, जैसे मैंने अ, ये लिखा था कि रिपेयरिंग हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो वो लिखा था तो उसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हर चीज़ में मोटर होती है, हर हुँ। चीज़ में वायरिंग तो होती ही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आई होते थिंक हैं। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि वी शुड गिव ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज़ कि हम वाक़ई क्या करते हैं, ताकि कोई क्रॉस क्वेश्चन आए, तो वी कैन डिफेंड दैट। अगर हम सिर्फ़ करेक्ट। इसलिए कुछ लिख रहे हैं कि ताकि वो अच्छा है, जैसे बुक रीडिंग लोग को लगती है अच्छा है, तो लिख देना चाहिए और वो लिखते नहीं हैं, है ना? हुँ, तो वो करते नहीं है बुक रीडिंग तो फिर फँस जाते हैं, वो पूछ लेता है कौन-सी किताब पढ़ रहे हो? 4 बातें बताओ उससे। तो हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गिव जेन्युइन आंसर्स। इंटरेस्टिंग। तो आपको हाँ, हाँ, फँसाना बहुत आसान होता है। ऐसे अगर बहुत हाँ। आप मेजर हॉबीज़ बता रहे हो जैसे क्रिकेट, अधिकतर लोगों का क्रिकेट होता है। बट क्रिकेट में आपको फिर बहुत सारी टर्म्स पता नहीं है, तो आप उसमें फँसने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, सर तो ऐसा आप होता है। अगर मैं जब इंटरव्यूज़ लेता था तो लोग देखते थे फुटबॉल एज़ अ हॉबी। तो मैं पूछता था भैया बताओ किसने जीता यूरोपियन कप, लास्ट यूरोपियन कप? तो जो लास्ट मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट, तो उस राइट। टाइम पर मैंने एक चीज़ देखी कि चेस एक हॉबी हो सकती है। तो मैंने वो डेवलप की थी। अच्छा, मुझे चेस अच्छा। खेलना नहीं आता था। हुँ। ओके, यू डेवलप्ड एन हॉबी आल्सो फॉर इंटरव्यू। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। यस। ओह तो वाओ! मैंने एक हॉबी डेवलप की क्योंकि ये मैंने गाइस ये कंसर्न बहुत करा अच्छी चीज़ है आई थिंक सीखने को कि ज़रूरी नहीं हो कि हमारी हॉबी शुरू से हो। यू नो वी कैन बिल्ड सम गुड हॉबीज़। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो मैंने एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई की कि मैं ठीक-ठीक खाना बना लेता हूँ, तो एक कुकिंग हो सकती है। अगर मैं चीज़ों को खोलना मेरे को बचपन से आदत है, मैं खोलता ही हूँ चीज़ें, उसको रिपेयर करता हूँ। तो और काफ़ी सारी वीडियोज़ देखता था कि ये चीज़ जैसे आप लोग भी देखते होंगे, ऐसा करते होंगे, काफ़ी लोग करते हैं कि आप आपके घर की कोई चीज़ खराब हो गई, तो आप एटलीस्ट वीडियो देखते हो, ये हुँ, कैसे ओपन हो सकता है। मैं लैपटॉप खोल लेता था बहुत बार, तो हुँ। लैपटॉप खोल के मैं उसका रैम चेंज कर देता था। फिर उसके बाद उसकी हार्ड ड्राइव निकाल के दूसरी हार्ड ड्राइव फीड कर रहा हूँ। मतलब बेसिक-बेसिक चीज़ें तो आप कर ही सकते हो ना। बैटरी निकालते हो आप। आजकल के लैपटॉप्स में तो बैटरी नहीं ओपन होती, बट पुराने लैपटॉप्स आप देखोगे तो हाँ, उसमें बैटरी राइट। सेपरेट निकल होती जाती थी। थी और सीधे हो जाता था। इंटरेस्टिंग आई थिंक और आपने हर चीज़ थॉटफुली करी है
और किसी भी चीज़ को बड़ा डिलिजेंटली करते हैं तो आई थिंक यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ऊपर-ऊपर से यस, हम जो चीज़ करते हैं उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग। करेक्ट।